US کہانی چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں چھوٹی سی تھی، ایک چھوٹے سے شہر میں رہا کرتے تھے۔ وہ شہر کب تھا؟ گاؤں جیسا تھا، جہاں پرائمری اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ ویسے تو لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول تھا، لیکن پڑھائی اچھی نہ ہونے کے باعث اکثر لڑکیاں ہمارے اسکول میں پڑھنے کو ترجیح دیتی۔ کلاس میں اکثریت لڑکیوں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری کلاس اسکول کی سب سے اچھی جماعت تھی، کیونکہ لڑکیاں زیادہ استادوں کی فرما بردار ہوتی ہیں اور کھیل کود سے زیادہ پڑھائی میں دلچسپی رکھتی ہیں، جبکہ وہ کلاس جس میں لڑکے زیادہ ہوتے ہیں تعلیمی لحاظ سے بہتر نہ ہوتی، کیونکہ لڑکے شرارتیں کرتے، ڈسپلن توڑتے اور اپنے کپڑے بھی الجھے نہ رکھتے، جبکہ لڑکیاں صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتی تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری کلاس سارے اسکول کی سب سے اچھی کلاس تھی۔ یہ بات ہر استاد کے منہ تھی۔ ہماری کلاس کا مانیٹر لڑکا، جس کا نام راجویر تھا، وہ اعلیٰ ذات کا تھا، تبھی اس کی سب عزت کرتے تھے۔ اس کا باپ ایک تاجر تھا۔ اس کے رکھ رکھاؤ اور عادات سے خوشحالی ظاہر ہوتی تھی۔ راجویر بہت ذہین اور خوبصورت تھا، مگر چلاک نہیں تھا، سیدھا سادہ تھا، تقریریں اچھی کرتا تھا۔ جب بھی کوئی فنکشن یا تقریر مقابلہ ہوتا، اول نمبر رہتا تھا۔ اسی وجہ سے بھی ہیڈ ماسٹر صاحب، سب استاد اور لڑکے لڑکیاں اس کو چاہتی تھی۔ میں اپنی جماعت کی سب سے کمزور لڑکی تھی، اتنی خوبصورت بھی نہ تھی۔ مجھ سے کہیں زیادہ ذہین، چلاک، امیر اور خوبصورت ہمارے ساتھ پڑھتی تھی، پھر بھی سمجھتی تھی کہ راجویر مجھ کو چاہے گا۔ شاید یہ میری خود فریبی تھی یا خام خیالی، مگر اپنے اسی تصور میں بہت خوش تھی۔ بے شک وہ میری طرف دیکھتا بھی نہ تھا، مگر وہ کسی اور کو بھی لفٹ نہ دیتا تھا۔ حالانکہ ان دنوں ہم اتنے بڑے نہ تھے۔ فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے ہم کتنا شعور ضرور تھا کہ لڑکے اور لڑکی آپس میں دوستی اور محبت کرتے ہیں۔ میرے گھر سے راجویر کا مکان نزدیک تھا۔ ہم صبح 8 بجے اسکول جاتے اور 2 بجے واپس آتے، تھوڑی دیر آرام کرتے، کھانا وغیرہ کھاتے اور پھر ٹیوشن کے لیے چلے جاتے، تو 6 بجے لوٹنا ہوتا تھا۔ یوں ہم گھر سے زیادہ وقت اسکول میں ایک ساتھ رہتے تھے۔ انہی دنوں اسکالرشپ کی تاریخ کا اعلان ہو گیا۔ اس کے لیے نزدیکی شہر جا کر ٹیسٹ دینا تھا۔ جہاں ہم کو ٹیسٹ کے لیے جانا تھا وہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 30 کلومیٹر دور تھا۔ سارے طالبہ و طالبات اس امتحان کی تیاریوں میں لگ گئے۔ کلاس ٹیچر نے پروگرام کا انچارج راجویر کو مقرر کر دیا۔ اس نے حساب لگایا اور جانے کا خرچہ ہر لڑکے اور لڑکی پر 250 روپے رکھا۔ سبھی نے جانے کی تیاری کر لی اور پھر ابا جی نے راجویر کو بلایا اور میرا خیال رکھنے کو کہا، تو میں اور بھی زیادہ خوش ہوگی۔ دل سے چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح مجھ سے بات کرے۔ پتا جی کے بلانے کے بعد اس نے مجھ سے بات کی۔ راجویر اور میں نے قریبی پڑوسی ہونے کے ناطے ایک ساتھ پیکنگ کی۔ آخر کار ہم شہر پہنچ گئے۔ یہاں مجھ کو راجویر کے قریب آنے کا زیادہ موقع ملا، کیونکہ میرا اور اس کا سامان ساتھ تھا۔ اس کے کپڑے میرے بریف کیس میں تھے اور میرا کچھ سامان اس کے بیگ میں تھا۔ تبھی روزانہ میں اس کو اپنی پسند کا جوڑا نکال کر دیتی، اس کا خیال رکھتی، اتنی خدمت کرتی کہ کسی نے اتنی خدمت نہ کی ہوگی۔ اس طرز عمل نے اس کا دل مول لیا۔ شہر میں ہم نے 5 دن گزارے۔ یہ دن یوں منٹوں میں گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ میرے لیے تو یہ 5 دن 5 منٹ کے برابر تھے، مگر یہ اتنے قیمتی دن تھے کہ ان 5 دنوں میں نے اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ اب میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھنے لگی تھی۔ وہ راجویر تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کا پیار پا کر میں راجکماری ہو گئی ہوں۔ میں نے اس کو اپنے دل کا مالک بنا لیا۔ ٹیسٹ ختم ہو گئے تو ہم اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ اب ہم روزانہ کلاس میں ملتے، مگر دوسروں کے خوف کی وجہ سے بات کم کرتے تھے۔ سالانہ امتحان کی تاریخ آ گئی، تب لگا کہ یہ وہ تاریخ ہے جو سندیسہ لائی ہے، اس بات کا کہ ہم زندگی بھر کے لیے بچھڑ جائیں گے۔ سالانہ امتحان کی تیاری میں بھی اس نے مدد کی، مگر باتیں کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا تھا، کیونکہ ماتا جی یا بہن جی سامنے بیٹھ جاتی تھی۔ امتحانوں کے بعد الوداع پارٹی ہوئی، وہ ہمارے بچھڑنے کی آخری تاریخ تھی۔ اس دن گروپ فوٹو بھی ہوا۔ یوں یہ زندگی کے بچھڑنے کا یادگار دن ہو گیا۔ اپنی الوداع تقریر میں اس نے کہا تھا کہ آج ہماری زندگی کے ایک باب کا ختم ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے موڑ پر ہم آپس میں مل بھی سکیں گے یا نہیں۔ اس دن میری آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی آنکھیں بھی پر نم تھی۔ یوں ہم ہاتھ ہلاتے اس اسکول کے گراؤنڈ سے نکلتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ راجویر لڑکوں کے اسکول میں چلا گیا اور میں نے گرلز اسکول میں داخلہ حاصل کر لیا۔ اب ہمارے ملنے کا کوئی موقع نہیں رہا تھا۔ اسکول کا ٹائم صبح 8 بجے تھا، جبکہ اس کے اسکول کا ٹائم 9 بجے تھا۔ وہ صبح روزانہ مندر جاتا تھا، جو ہمارے اسکول کے راستے میں پڑتا تھا۔ ایک روز سویرے جب میں اسکول جا رہی تھی
उसे मंदिर से लौटते देखा। तभी मैंने स्कूल जाने का टाइम सुबह 7 बजे मुकर्रर कर लिया, क्योंकि यही वक्त इसके मंदिर जाने का था। इस तरह हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। हम मंदिर में छुप छुप कर मिलने लगे। किसी बड़े त्यौहार पर तो बाकायदा मुलाकात हो जाती थी। मैंने 8वीं का इम्तिहान पास कर लिया और अब मैं 9वीं में थी, जबकि राजवीर एक क्लास आगे प्रमोट हो गया था। तो वो हमारे ज़िला में अव्वल आया था। मेरे 2 भाई थे, बड़े का नाम कुमार और छोटे का अजीत था। मैं अजीत के ज़रिए राजवीर से नोट्स मंगवा लेती थी। इसके बाद मैंने नोट्स की कॉपी पर ख़त लिखने शुरू किए और किसी को पता नहीं चला। यूँ हम मोहब्बत की मंजिलों तक पहुँचे। नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बगैर जीना मुश्किल हुआ। जब इसने 10वीं का इम्तिहान दिया तो अलविदा पार्टी में गया। वहाँ 2 तालबा तंजीमों में झगड़ा हो गया। कुछ लड़के ज़ख्मी हुए और कुछ जेल चले गए। राजवीर भी जेल चला गया। इसके जेल जाने के बाद मेरा बुरा हाल हुआ कि बयान ही कर सकती। मुझको बुखार हो गया, वालिदैन परेशान थे और मैं नींद पागल सी हो गई थी। जब भी होश आता तो मैं इसके लिए दुआ मांगती। अगर ज़िंदगी में कुछ भगवान से मांगा तो वो इसकी रिहाई थी। अगर भगवान ने वो दिन भी दिखाया जब वो जेल से छूट कर आ गया। इसकी चाहत में इतनी बेखुद हो गई कि ये भी पता ना चला कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। बगैर चादर लिए मैं इसके घर चली गई। फिक्र और परेशानी ने मुझको बहुत दुबला कर दिया था। जब मैं इसे मिली तो वहाँ भी वही सूरत हाल थी। इसने बताया कि तुम मुझको जेल में इतनी याद आई हो कि कभी इतना सोचा भी ना था। इतने माता पिता भाई सब परेशान के मैं कहाँ गई हूँ। ऐसे बगैर पूछे कभी मैं कहीं जाती ना थी। जब वापस लौटी सब डांट पड़े। पिताजी इस कदर बरहम थे कि क्या बताऊँ, मगर मुझको इनकी डांट से कुछ कलक ना हुआ, क्योंकि साढ़े 3 माह की अजियत भरी जुदाई के बाद राजवीर से मुलाकात हुई थी। वो रिहा हो गया था। मैं बेहद खुश थी। भगवान ने मेरी सुन ली थी। परेशानी ख़त्म हुई तो बीमारी भी जाती रही। दाखिले शुरू थे, लिहाजा हम दोनों ने फार्म भरे। यहाँ कॉलेज एक ही था। एक बार फिर एक ही इदारे में पढ़ने की वजह से हम मिल सकते थे। इसका तो जेल जाने की वजह से साल ज़ाया हुआ था और अब हम फिर बराबर क्लास में आ गए थे। वक्त गुजरने लगा। हमने इंटर का इम्तिहान भी दे दिया। इंटर के बाद हमने दादू जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि एक दूसरे के बगैर सांस लेना दुभर हो रहा था। दादू में इसकी बहन का घर था, जबकि मेरे मामू वहाँ रहते थे। इसके बहनोई सुबह से दुकान पर चले जाते थे। घर में सिर्फ इसकी बहन और इनकी छोटी सी बच्ची होती थी। मैं इस बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बहन तो काम में मसरूफ़ होती। मैं और राजवीर बैठकर खूब बातें करते। हम अकेले होते, मगर कभी से तन्हाई का फ़ायदा ना उठाया। कभी मुझको छुआ तक नहीं। हम फांसे से बैठकर बातें करते थे। अभी मुझे दादू आए 1 माह हुआ था कि एक मनहूस खबर आई कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। मामू और मुमानी के साथ सीधी घर आई। वो भी वापस पहुंच गए। अब हमारे मिलने या ख़त लिखने का कोई चांस ना था। बड़े भाई पिताजी की देहांत के बाद घर के सरबराह बन के वो तो वालिद से भी सख्त थे। माता जी से कहा, अब इसका जल्दी जल्द रिश्ता ढूंढ लो, क्योंकि मज़ीद कॉलेज में नहीं पढ़ाना है। वालिदा ने रिश्ते के लिए मिलने वालियों से कहा तो रिश्ते भी आने लगे। एक लड़का भाई को पसंद आ गया। अपने तौर पर हाँ कर दी, मुझसे पूछा तक नहीं। मेरा ये आलम कि बड़े भाई के आगे कुछ बोलने की हिम्मत ना थी। मैं बेहोश हो गई। इसके बाद इतनी बीमार पड़ी कि मौत की दहलीज तक पहुंच गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैं लड़की थी, कुछ कर नहीं सकती थी। कभी सोचती थी कि भागकर राजवीर से शादी कर लूं, मगर ऐसा कदम के उठाने की भी सागत खुद में ना पाती थी। बल्कि राजवीर भी शायद ऐसा करने से मना करता कि इज़्ज़तदार ख़ानदान का चश्मो चिराग था। मैंने चाहा वो कम से कम अपनी मोहब्बत के मामले में अपनी माँ को ये आगाह कर दे, लेकिन वो माँ को भी ना बता सका, ना ही हमारी शादी के मुतल्लक अपनी माताजी से बात की। मैं तो फिर भी लड़की थी और मेरे लिए भी ये मुमकिन नहीं था कि ज़ुबान खोलती। वक्त ना ठहरता है और ना किसी का इंतज़ार करता है। मेरी शादी का तारीख भाई ने तय कर दी और मैं किसी भी तरह राज तक ये बात ना पहुंचा सकी कि मैं पराई होने जा रही हूँ। वो दिन भी आ गया जब मेरे बाबल के दरवाजे पर शहनाई बजी और ससुराल वाले मुझे ब्याने आ पहुँचे, लेकिन मेरी डोली ना थी, ये मेरी आरती थी। जो वो आ रहे थे, बेतहाशा रो रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। खुदा जाने किसने इसको खबर कर दी कि वो मेरी डोली का कहार बनकर आ गया। मैंने पर्दे की ओर से देखा। राजवीर की दाढ़ी भरी हुई थी और वो दीवाना लग रहा था, जिसको स्कूल में सारी लड़कियां चाहती थी। आज वो मेरी चाहत में पागल सा लगता था। वो मकबूत अलबाज सा बारात के आगे आगे चल रहा था, जैसे मुझको इज्जत से रुखसत करना इसी की जिम्मेदारी हो। अचानक मेरे बड़े भाई की इस पर नज़र पड़ी तो वो परेशान हो गए।
क्योंकि राजवीर का लिबास भी जलाना था। वो किसी तरह बराती नहीं लग रहा था। कुछ सोचकर कुमार भाई खामोश रह गए और इसको आखिर तक बर्दाश्त किया। ताहम इनकी नज़र इसी पर टिकी रही कि कहीं कोई गैर मामूली वाक़या रूनमा ना हो जाए। भगवान की कृपा से मामला शांत रहा। बखैर रुखसी का मरहला अंजाम तक पहुंचा और मैं अपने पति के घर आ गई। वो वक्त मेरे लिए क़यामत का था। वो साथी हमेशा के लिए बिछड़ गया था, नज़रों से ओझल हो गया, जो हमेशा दिल में रहता था, जो आज भी दिल में रहता है। मगर इस दिन के बाद फिर राजवीर का पता नहीं वो कहाँ गया। अब जब मैं के जाना होता, दुआ करती कोई राजवीर का जिक्र लबों पर लाए, कोई इसका तज़किरा छेड़े, तो कहूँ कि बताओ तो सही वो कैसा है, कहाँ है, खुश है कि उदास है। वो एक लायक तालिब इल्म था। इसने खानदान और वतन का नाम रोशन करना था, कुछ बनना था, कुछ करके दिखाना था। उसे सारे उस्ताद फ़ख्रिया कहते थे, देख लेना ये होनहार लड़का हम सब का नाम रोशन करेगा। एक दिन पड़ोस से मासी जीनी आई, अम्मी से दुआ सलाम थी। मैं वहाँ बैठी थी। वो बातों बातों में पड़ोसन के दुख का तज़किरा ले बैठी। बोली, हाय बेचारे जंदर जी के ख़ानदान को जाने किसकी नज़र लग गई। महीनों गुजर गए, अभी तक इनके बेटे राजवीर का सुराग नहीं मिला। आखिरी बार रानी की शादी में देखा था, इसके बाद घर नहीं आया, जाने कहाँ चला गया। मासी जीनी की बातों पर मेरे कान खड़े हो गए। चुप ना रह सकी, पूछ ही लिया, मासी वो कहाँ गया, क्यों नहीं लौटा। अरे बेटी ये तो कोई नहीं जानता, इसके पता ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। हर जगह तलाश किया, हर रिश्तेदार के घर मालूम किया, दोस्तों से पूछा, कोई कुछ नहीं बताता। लगता है इसने दरिया में कूदकर जान दे दी है और इसके मुर्दा तन को मछलियाँ खा गई हैं। मासी के अल्फाज में दिल पर गुस्से की तरह लगे, क्योंकि राजवीर अक्सर कहता था, रानी अगर तुम किसी और की होगी तो देख लेना, मैं अंधे कुएं में कूदकर जान दे दूंगा या फिर दरिया में छलांग लगा दूंगा, क्योंकि मुझे तैरना तो आता नहीं, इसलिए अच्छा है कि मुझको मछलियाँ खा जाए। उफ मेरे भगवान, क्या ऐसा ही हुआ होगा। काश मैं जान सकती, किसको बता सकती कि वीराने में जो एक अंधा कुआं है कब्रिस्तान के पारली तरफ, वहाँ जाकर तो देखो, इसको अंदर उतारो, शायद तुम के सच्चे प्रेमी का जस्त खा के पिंजर की सूरत में परा मिल जाए। अगर वहाँ नहीं मिला तो यकीन करो कि वह दरिया में ही होगा। मगर वहाँ तो अब तलाश करना बेकार था। दिल ने अंदर से सिसकियाँ ली, मगर जब्त किया। आंसू न गिरा सकी कि ये आंसू मेरी सवाई की गवाही बन जाए, और मेरे पति को अगर शक भी हो जाता तो मेरा जीवन तह नहस और इनकी खुशियों का करिया कर्म हो जाना लाजमी था। आज इस वाक़े को बीते 40 बरस हो चुके हैं। मेरी जवानी बुढ़ापे में तब्दील हो चुकी। मेरे पति स्वर्गवास हो गए, मेरे बच्चे जवान हो गए हैं। कभी कभी वो मुझको कोई कहानी सुनाने को कहते हैं। इनकी फरमाइश पर जी करता है अपनी ही कहानी सुना दूँ, किसको सुनाकर दिल का बोझ तो हल्का कर लूँ, मगर नहीं ना सुना सकती। मुझ में हिम्मत नहीं होती और बच्चों में इतनी सूझबूझ नहीं है कि इस कहानी के गहराई और तकद्दुस को समझ सकें। वो तो 2 प्रेमियों को पागल और 2 चाहने वालों को दोषी समझेंगे। तब इनसे हर राज कहने का क्या हासिल। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।